Once again, the Indie alliance has shown its true face. Bharat Virodhi face, Hindu Virodhi face. DMK's leader Stalin, the statement he has made comparing Sanatan Dharma with diseases, and has also said that Sanatan Dharma should be terminated, should be finished, should be extinguished. This is nothing less than a genocidal call, and it has been supported by Karti Chidambaram of the Congress party. This shows the mindset of this alliance. It's not a one-off statement. Samajwadi Party says that Hindu Dharma is a dhoka. IUML had raised genocidal calls against Hindus in Kasaragod. MMK made a poster mocking Prabhu Shri Ram. We have seen the long history of Sanatan Virod by Congress party, doubting existence of Prabhu Shri Ram, opposing the Ram Mandir, Hindu terror, Hindu is a dirty word, and so on and so forth, which has even been described in Manishankar Iyer's book. The question is that is this Mohabbat ki dukaan or is this Nafrat ke bhaijan? Mamata Banerjee refuses the tilak. This is the long pattern of Sanatan Virod. But now Uddhav Thackeray ji and members of this so-called alliance should tell us, is this the manner in which Judega Bharat, by calling for the extermination and termination of that faith which 80% of the people have astha in? Uddhav Thackeray ji, you talk about being a big champion of the Hindutva cause, but your own allies, right from abusing Hindutva, right from threatening Hindus, right from calling for the extermination of Sanatan Dharma, right from calling Hindu Dharma as a dhoka, they have made all kinds of choicest abuses against Hindu religion, Hindu faith and its believers only for vote bank politics. Yet Uddhav Thackeray ji has not a word to say. This is their true foe. Rahul Gandhi claims to be a Janyudhari Hindu, a true Shiv Bhakt. But Rahul Gandhi is absolutely silent, because for Rahul Gandhi, it is not about Mohabbat ki dukaan. It is only about vote bank ki dukaan. Hindu or Sanatan ko do gali taki mile vote bank ki tali. This is the motto of his Nafrat ke mega mall and Nafrat ki mega store. जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। आप बताइए, ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? क्या हिंदू धर्म पर इस तरीके का आघात लगने देंगे क्या? ये मित्रों, और क्या कहता है उदयनिधि स्टालिन? कहता है कि एंटी सनातन नहीं, एबॉलिश सनातन, मतलब सनातन धर्म को जड़मूल से समाप्त कर दो। जिस प्रकार उदाहरण क्या देता है सुन लो, उदाहरण देता है कि जैसे मच्छर, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू, जैसे कोरोना, इसको हम समाप्त करते हैं, वैसे ही सनातन धर्म को समाप्त कर दो। यह है परिवारवादी घमंडिया गठबंधन का घमंड, और वो इस तरीके की बेतुकी बातें कहने में कोई गुरेज नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। आप बोलिए, उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन की नफरत का सामान कहां बिक रहा है?
ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? मैं ये इंडी अलायंस और घमंडिया गठबंधन से सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, मुझे जवाब चाहिए और देश को जवाब चाहिए कि जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो इंडी अलायंस का और घमंडिया गठबंधन का रणनीति का, राजनीति का हिस्सा है। क्या वह रणनीति बनी है और क्या आपने मुंबई में यह रणनीति बना करके आप उतरे हैं? और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप आने वाले चुनाव में आप सनातन धर्म को समाप्त करने की राजनीति के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं? अगर आप जाने वाले हैं और अगर नहीं, आपने तय किया है कि कुछ भी भारत से जुड़ा हुआ हो, भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का सनातन धर्म, भारत की सोच, भारत का गौरव इतिहास, इससे आपका कोई लगाव नहीं है और आपकी मोहब्बत की दुकान नफरत फैलाने वाला कार्य कर रहा है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा यहां जहां आप जन आशीर्वाद यात्रा में आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वहीं आप संकल्प लें कि ऐसे इंडी अलायंस को आप जमीन से उखाड़ करके फेंक। Is commenting on Sanatan Dharma, is commenting on Hinduism and Hindu faith without any worries of any response, because he believes that his money, his wealth, his dynasty position puts him in a situation where he can insult thousands and hundreds of crores of Indians and people from Tamil Nadu. The reality is this, that our country for 65 years before Narendra Modi ji became Prime Minister has been exploited by a few parasites and parasitic dynastic families, which is the Udaynidhi's family in Tamil Nadu. Now we are seeing in West Bengal another dynastic parasitic family. We are seeing some in Maharashtra. We are seeing it all in UP. And it is really our national mission, it should be our national mission, that this country's political culture and politics is rid of these type of dynasts who only exploit and enrich themselves and don't care for anybody, and because they don't care for anybody, they keep insulting the faith of thousands of crores of Hindus in our country. And Udaynidhi Stalin is a classic example of a spoiled brat, a person who has not done one day's honest work in his life, talking about something that is so important and of faith. And this is the signature of the INDIA UPA. Whether it is Rahul Gandhi of the Congress, whether it is Udaynidhi Stalin of the DMK, whether it is Akhilesh Yadav of the SP, or whether it is Mamata Banerjee's nephew, the young Banerjee in West Bengal, or it is other dynastic families, they constantly insult faith so that they think they can use that for appeasing the minority vote bank that they depend on. देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है, वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की, भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था की केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की, काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। देखिए, ये जो इंडी अलायंस है, इसके मजबूत स्तंभ है स्टालिन साहब, और उनके बेटा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे हैं, इसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को और जो इंडी अलायंस के अंदर मेंबर हैं उनको अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या वो लोग इकट्ठे होकर अलायंस बना रहे हैं या सनातन धर्म को खत्म करने के लिए
और इसको डेंगू मलेरिया से तुलना करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करवा रहे हैं। वो एमके स्टालिन जो यहाँ पर जिस तरह का, स्टालिन साहब जो सीएम है उनके बेटे ने जिस तरह का बयान दिया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। I have seen the statement of that politician, and the same statement was also issued by one of the MP of the Congress party, Kartik Chidambaram. And also I have seen that similar kind of, more or less similar kind of statement has also issued some time back by Mr. Kharge. I do not want to condemn that minister from Tamil Nadu because he has exposed himself. But question is whether Congress party will be still in alliance with DMK. Whether Congress party will expel Kartik Chidambaram or he will be there. So this is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. It is his test. If he doesn't take any action or he does not snap ties with DMK, then people will believe, and people already believe, now people will confirm that these people are anti-Hindu. They do not like Sanatan, they do not like Hindu religion. Regarding whether Sanatan Dharma good or bad, that I don't want to join the debate with him. It was there from 5,000 years ago, and Sanatan will be in India till sun and moon is there. हम ये कह रहे हैं कि ये कोई आइसोलेशन में दिया गया बयान नहीं है. This is not an statement given in isolation, but it is having a complete consequential sequence. आप पिछले कुछ समय से देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बयान देते हैं. ये भी INDIA/घमंडिया के घटक दल हैं. फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चंद दिन पहले हिंदू धर्म धोखा है बोल चुके हैं. याद करिए, इससे पहले कर्नाटक में वर्तमान में PWD मिनिस्टर सतीश झारकीवली, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, मुख्य घटक घमंडिया गठबंधन का, ये बोल चुके हैं हिंदू शब्द बड़ा गंदा है, जब ये कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के. गोपाल इटालिया, जो इस समय आम आदमी पार्टी के महासचिव हैं, जो गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बोल चुके हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए. और अब उससे पूर्व के भी दौर की बात याद करें तो जब ये सत्ता में थे, जैसे आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने बात याद दिलाई है कि क्या कहते थे, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. इन्होंने अपने मन से तथा कथित हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी गढ़ ली थी. याद करिए, जनवरी 2013 यूपीए सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जयपुर में यह बयान देते हैं कि हिंदू टेरर कैंप्स चल रहे हैं. और जब सदन में उनसे पूछा जाता है, आप होम मिनिस्टर हैं, आपने बयान दिया है तो सबूत दीजिए, तो अपना स्टेटमेंट विड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने ऐसे ही कहा था. इसलिए ये जो घटनाएं हैं, ये केवल ऐसे ही नहीं हो रही हैं. इससे पूर्व भी तमिलनाडु में कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, वहां पर कुछ साल पहले यह कह दिया गया कि मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है, तो मंदिरों में पूजा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं. और इसी गठबंधन के घटक दल डीएमके की सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. वो तो मद्रास हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया कि किसी भी समुदाय का बहुमत हो गया है, इसके आधार पर दूसरे समुदाय की पूजा नहीं रोकी जा सकती. केरल से कश्मीर तक सेकुलरिज्म के सारे सूरमा मुंह में दही जमाकर बैठते रहे. और आज जो एक घटना हुई है जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आए, इस पूरी श्रृंखला को देखिए.
और ये जो घटना हुई है इसमें तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे, आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, with a proper design, with a proper conclusion। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? मुंबई में आपकी बैठक खत्म होती है और 24 घंटे के अंदर आप यह बोल देते हैं, कौन सी योजना बनाई थी आपने? देखिए, ये स्टालिन के इस बेटे को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किया जाना चाहिए, जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। एक और तो राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और उनके जो सहयोगी दल हैं और जिस सरकार में कांग्रेस शामिल है तमिलनाडु के अंदर, उसके एक प्रमुख नेता केवल सनातन धर्म की विकृतियों को, कुरीतियों को दूर करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि सनातन धर्म को जड़ से समूल नष्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो देशद्रोह का मामला बनता है कि आप समाज में इस प्रकार की नफरत पैदा कर रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों की भावना को आप आघात करने का काम कर रहे हैं। और डीएमके का तो पूरा इतिहास इसी प्रकार का रहा है, इसी राजनीति के बल पर वो आज तक यहाँ तक पहुंचे। तो इस तरह के बयान के बारे में कांग्रेस के राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो उस बयान के पक्ष में है या विरोध में है। नीतीश कुमार, लालू यादव, तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए कि ये उदयनिधि ने जो बयान दिया है उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अगर गलत है तो उनको खुलेआम इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। इसका मतलब है कि वो इसके उदयनिधि के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं।